Okay, so let's delve into green hydrogen. Yeah. Before we go into that, I just want to tell you what we're gonna cover. Yeah. So we're gonna first of all talk about different types of hydrogen, major types as well as some of the other lesser known ones. Then we will talk about what government of India is doing both on the demand side as well as on the supply side. Yeah. What is the hydrogen ecosystem? What are the usage of this? What various Indian listed companies or unlisted companies are doing towards green hydrogen adoption in their businesses. Yeah. In the end, we're going to talk about a little bit about the PLI, which are the companies which applied for the PLI, won that PLI. So with that, we are looking at around 20 to 30 minutes of content here. In the next series, we'll talk about something else on the green hydrogen related, but I promise you this is going to be a very, very interesting and learning session for you guys to understand areas as big as green hydrogen. Yeah. And why I say this is a very big area, because Indian government is importing energy of roughly 1 lakh crore. Yeah. Again, if you didn't hear me, I'll repeat, 1 lakh crore. Exactly, you heard me right. So this is the amount of business that they want to replace. That's the import substitution that they want to do with the green hydrogen. Now, green hydrogen is used not only as a fuel but also as a feedstock in few of the industry. And many of you think that green hydrogen story is very far down the line. That is also not the case, which will prove with the help of various examples of Indian companies foraying into green hydrogen, and hopefully you'll agree with me in the end that this green hydrogen future is very, very near. Yeah. Now, with that, let's talk about first of all why government did what it did with respect to the green hydrogen or Niti Aayog mission. Yeah. तो अगर आपने सोलर की इंडस्ट्री को अच्छे से फॉलो किया होगा तो आपने देखा होगा कि जब सोलर इंडस्ट्री शुरू हुई थी 10-15 साल पहले, तो उन्होंने रफली तब आता था सोलर का यूनिट, आई डोंट नो 16-17-15 रुपए पर किलोवाट का रहेगा, और वो आज घट के हो चुका है रफली 3 और बिलो 3 रुपीज पर किलोवाट. या नाउ in that, when government came up with the incentives, they focus more on the demand generation side by inviting various tenders. बट सप्लाई साइड में थोड़ा सा हम पीछे रह गए थे, तो इसीलिए हमने देखा कि चाइना से काफ़ी सारे सोलर मॉड्यूल इंडिया में आने लगे. तो गवर्नमेंट ने उसको डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने किया कि भाई लेट्स डू अप्रूव्ड ALMM, ओके, अप्रूव्ड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर का उन्होंने एक रिक्वायरमेंट बना दिया टू सपोर्ट एंड ग्रो ओवर इंडियन डोमेस्टिक मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. उसको एक स्टेप आगे ले जाने के लिए उन्होंने फिर DCR वाला रिक्वायरमेंट डाल दिया, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायर्ड, जहाँ पे आपको सेल इंडिया में बनाने हैं, और उसके लिए अगेन जो मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनियां थी उन्होंने एक स्टेप आगे का शुरू किया और वो सेल लगाने पे फोकस करने लगे. नाउ in this, what happened is that we lost a lot of time and gave a lot of business to other countries. Yeah, and which is what our government wanted to avoid on the hydrogen side. So उन्होंने एक नीति आयोग को बोला कि भाई आप नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में कुछ कीजिए. तो नीति आयोग ने RMI करके एक US की कंपनी है, आई थिंक रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट, उसको बोला कि प्लीज़ हेल्प अस एंड हेल्प अस डिफाइन आवर हाइड्रोजन मिशन. या अगर आप ग्लोबल न्यूज़ फॉलो करते होगे तो आपने देखा होगा कि देयर इज़ अ क्लाइमेट समिट विच मैट, एंड उन्होंने बोला कि भाई हमें 2030 में 2050 में ये वेरियस क्लाइमेट रिलेटेड गोल अचीव करने हैं, हमें कार्बन एमिशन कम करना है. और अगर आप कहीं पे भी देखते हो तो मैनी ऑफ अवर ट्रेडिशनल इंडस्ट्री आर हैवी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री, दे जनरेट लॉट ऑफ कार्बन, and all of this carbon gets released into the atmosphere. Now, to avoid that, to arrest that, our country, government of India came up with the national hydrogen mission. Now, we will go into that in later, but let's talk about what is hydrogen, कितने टाइप होते हैं, क्या यूज होता है, कैसे जनरेट होता है, थोड़ा सी बात करेंगे. हम जो मेजर 3 तरह के जो हाइड्रोजन की बात करते हैं तो वो होता है ग्रे हाइड्रोजन होता है, ब्लू हाइड्रोजन होता है और ग्रीन हाइड्रोजन होता है. तो ग्रे हाइड्रोजन बेसिकली दिस इज नथिंग न्यू, इट्स नॉट अ न्यू कंसेप्ट, इट्स ऑलरेडी बीइंग यूज्ड राइट नाउ एज वेल. या तो ऐसा नहीं है कि भाई ये हाइड्रोजन बहुत नई चीज़ है, जो भी है नहीं, नथिंग लाइक दैट. ग्रे हाइड्रोजन इज बीइंग यूज्ड इन इंडिया for many years. It's used in petrochemical refinery, it is used in fertilizer as a feedstock.
यूजुअली व्हाट दे डू इज दैट आप या तो कोल से करते हो या फिर नेचुरल गैस से करते हो। तो जब आप नेचुरल गैस यूज़ करते हो और वहाँ से उसको सेपरेट करके आप उसको CO2 हवा में जब छोड़ देते हो तो उसको ग्रे हाइड्रोजन बोलते हैं। एंड दैट हाइड्रोजन जो आप स्टोर करते हो वो हाइड्रोजन आप इन सब प्रोसेस में यूज़ करते हो। अगर वो हाइड्रोजन जो CO2 हमने हवा में छोड़ दिया है उसको अगर हम किसी तरह से कैप्चर कर लेते हैं, इट नॉट गोना बी 100%, तो हमने वो CO2 को हम कहीं पे स्टोर कर देंगे, यूजुअली हम अंडरग्राउंड उसको स्टोर कर देंगे, तो वो हो जाता है ब्लू हाइड्रोजन। वो CO2 आगे जाके आप किसी और जगह पे आप यूज़ कर सकते हो। तो दिस इज बेसिकली द मेन डिफरेंस बिटवीन द ग्रे हाइड्रोजन एंड ब्लू हाइड्रोजन। बोथ ऑफ दिस आर मेड फ्रॉम नेचुरल गैस, ओके। और डिफरेंस उतना ही है कि ग्रे हाइड्रोजन में CO2 को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं, ब्लू हाइड्रोजन में CO2 को वो पकड़ के बैठते हैं एक स्टोरेज में, और जितना पकड़ सकते हैं 100% तो वैसे भी नहीं होता है। तो अगर ग्रे हाइड्रोजन की बात करते हैं तो ग्रे हाइड्रोजन इज 95% ऑफ आवर वर्ल्ड, जितने भी H2 प्रोड्यूस होता है उसमें 95% आता है ग्रे हाइड्रोजन आता है। कैसे बनता है? तो दो मेथड होती है, विल नॉट गो इनटू डिटेल ऑफ दैट, बट जस्ट फॉर किसी को ढूंढना है तो दो मेथड होती है। एक स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग बोलते हैं, दूसरा कोल गैसिफिकेशन होता है। ये दोनों से CO2 बाहर आता है। हम इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे, आप थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा। तो नाउ कमिंग टू दी ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन में अलग क्या है? तो पहले अगर आपने देखा तो दोनों में हमने नेचुरल गैस यूज़ किया है, यहाँ पे हम पानी यूज़ कर रहे हैं। अब पानी को हम इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से हम हाइड्रोजन के एटम को और ऑक्सीजन को अलग कर रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन अगर पानी का अगर आपने केमिकल फॉर्मूला अगर जानते होंगे तो दैट इज H2O, देयर इज नो कार्बन हियर, राइट। तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी स्प्लिट बोथ द एटम, और उसमें से हाइड्रोजन जो निकल के आता है उसने हमने कैप्चर कर लिया, हमने स्टोर कर लिया और यूज़ कर लिया। और ऑक्सीजन ने इधर हमने उसको अलग से स्टोरेज में रख लिया, एंड दैट वी कैन यूज दैट ऑक्सीजन आइदर फॉर मेडिकल यूज और समथिंग सम अदर इंडस्ट्रियल यूज, या तो फिर हम उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज कर सकते हैं। सो दिस इज अ जीरो एमिशन फ्यूल, इसकी वजह से इसको ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है उसमें वी ओनली यूज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो आप सोलर हो गया, विंड हो गया या हाइड्रो पावर हो गया, तो वहाँ पे आप अगर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के लिए आप ये रिन्यूएबल एनर्जी यूज करेंगे तो उसकी वजह से हम इसको ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। ओके, I hope that is clear. Now let's talk about some of the other type of hydrogen, yeah, which is not very common, but just we just want to give you a complete understanding of the different type of hydrogen. तो there is something called black hydrogen, there is something called brown hydrogen. दोनों में क्या है? अगर आप कोल यूज कर रहे हैं, अगर ब्लैक वाला बिटुमिनस कोल यूज कर रहे हैं तो हो गया ब्लैक हाइड्रोजन। अगर आपने लिग्नाइट वाला कोल यूज कर रहे हैं तो ब्राउन हाइड्रोजन हो गया था। देयर इज समथिंग कॉल्ड रेड हाइड्रोजन एज वेल एज पिंक हाइड्रोजन, मतलब बहुत सारे कलर आ गए। रेड हाइड्रोजन जो होता है वो बायोमास, अगर आपने गोबर गैस प्लांट अगर सुना होगा कभी, तो सिमिलर काइंड ऑफ प्रोसेस है। ह्यूमन, एनिमल वेस्ट, बायो लेट्स से वेजिटेबल एंड अदर वेजिटेशन रिलेटेड वेस्ट, फूड वेस्ट, ऑल ऑफ दिस गोज इनटू फर्मेंटेशन, और उसमें से जो मीथेन प्रोड्यूस होता है उसमें से हाइड्रोजन निकालते हैं। दूसरा आता है पिंक वाला। तो पिंक वाला इज थर्मल न्यूक्लियर एनर्जी से, सॉरी नॉट थर्मल, न्यूक्लियर एनर्जी से जो हाइड्रोजन बना सकते हैं उसको हम पिंक वाला हाइड्रोजन कहते हैं। जहाँ पे देयर इज समथिंग कॉल्ड येलो हाइड्रोजन। येलो हाइड्रोजन में हम सोलर तो यूज कर रहे हैं बट 100% सोलर यूज नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो ग्रीन नहीं कहलाते बट येलो हो जाता है, क्योंकि हम पावर जो ड्रॉ कर रहे हैं ग्रिड से कर रहे हैं विच इज कमिंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल बेस्ड मैकेनिज्म की वजह से वो पावर बना है, इसलिए उसको हम येलो वाला कहते हैं। उसके बाद आता है टर्कोइज हाइड्रोजन, जो आता है बेसिकली फ्रॉम पायरोलिसिस प्रोसेस से मिथेन को स्प्लिट करके हाइड्रोजन निकालते हैं। और लास्ट में, सो दिस इज अगेन व्हाइट गोल्ड, अगर आपने कभी सुना हो ये, तो व्हाइट गोल्ड विच इज व्हाइट हाइड्रोजन वो नेचुरली अकरिंग है। तो अगर आपने देखा होगा कि देर आर लॉट ऑफ स्टार्टअप इन US एज वेल एज मैनी कंट्रीज आर अनाउंसिंग भाई हमें व्हाइट गोल्ड का खजाना मिल गया है। सो दैट इज नथिंग बट अ व्हाइट हाइड्रोजन जो नेचुरली अवेलेबल है। वहाँ पे आपको कुछ एनर्जी यूटिलाइज नहीं करनी पड़ती है, वो आप सिर्फ निकाल लो, बॉटल कर लो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्योरीफाई कर दो और आप यूज़ कर सकते हो एज अ फ्यूल और एज अ फीड स्टॉक। या सो ये हो गए अलग अलग तरह के हाइड्रोजन।